Hello everyone, this side Poonam Grover from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. Today I start my lecture number 20, which are came under Unit 3 and based on your digital electronics. I'm a faculty member in Electronics and Telecommunication Department, and today I cover the topic that is shift registers and its type. So, what do you mean by shift register? And what is the need of that particular type of shift register in your digital electronics applications? In your simple flip-flop, you can store either 1 or 0 at a times. But whenever you store multiple bit at a times, then how it is stored? It means you can use the serial and parallel combination of your flip-flops. If you use four flip-flop, either D, T, J, K in serial manner, so that in that case, every flip-flop store either one bit, so you can arrange the four flip-flop in your serial manner. So at a time, you can store 4 bit at a times. So 4 bit at a time as seen in figure. Here we can use D flip-flops, and on the only one flip-flop can store 1 or 0 at a times, but we can use 4 flip-flops, so at a times it should be store 4 bit, either 1010 or either 1011. That depends upon you how the particular type of bit should be stored at that particular time. So in our binary shift register, flip-flop connected in cascade manner is an binary shift register. So we are having four type of shift register: serial in, serial out, and serial in parallel out shift registers, parallel in parallel out shift register, and parallel in serial out shift register. So basically we deal with your registers word, REZ. So in that case, register is a logical device which can use to store the information. So whenever you connected the number of flip-flop in cascade, it should be converted into your shift registers. And how the logic should be applied, according to the logic applied to the particular type of shift registers, it can shift the bit either serially or parallelly as per my requirement. So application of binary shift register, they are used for temporary storage of data. They will provide a delay that is equal to your delta t is equal to n into tc. Tc is equal to 1 by fc. So these are used for data conversion. Example, a serial in parallel converts serial form to data into a parallel form of data. And these are the arithmetic operation like shift, you can say left shift or right shift. So by the use of left and right shift, you do the operation of your multiplication or either division by 2. So if you multiply the bit of in any number, you can shift the particular type of bit either in left, but in the division case you shift the particular type of bit in right. So that's why it performs for the multiplication or shift left operation on that particular type of bit by 2, and either for right shift register or right shift operation in the case of division by 2. So the right shift register is having error of 0.5 for odd numbers. It is a main point which you can get it during the right operations, and that should be covered in my later part of the video. So here we show the basics. Start with your serial in, serial out shift registers, how the operation should be done with the help of your serial in, serial out shift register. Suppose we are having four flip-flops which are connected in cascade, and the output applies simultaneously to each flip-flop. सो इन दैट केस हमने क्या देखा है कि आपने चार फ्लिप फ्लॉप लिए हुए हैं और चारों को आपने सीरियली कनेक्ट किया हुआ है। तो एक की आउटपुट नेक्स्ट की आपकी क्या बन रही है, इनपुट बन रही है। इट मीन्स क्या हुआ, इसकी सेकंड की आउटपुट थर्ड की, और थर्ड की आउटपुट फोर्थ की इनपुट बन रही है, और लास्ट यहाँ पे आपको क्या होगा, आउट होगा। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन डाटा जो है सीरियली इसके अंदर क्या करवाएंगे, एंटर करवाएंगे, और वही डाटा ड्यूरिंग क्लॉक पल्स क्या होगा, वन बाय वन क्या होगा, आपका आउट होगा। क्लियर। तो इसमें इट मीन्स क्या हुआ, अब क्लॉक सबको क्या दी हुई है, साइमल्टेनियसली अप्लाई की हुई है। तो ये आपकी आप दैट डिपेंड्स अपॉन यू,
either the clock is positive as trigger or negative as trigger. It means how the particular type of bit should be stored into your flip flop that depends upon your clock. So if the positive clock, it means when the clock changes from 0 to 1, the particular type of bit enter into your D flip flops and make a part of your output on that particular flip flop. So initially we can say that all of the flip flops are in condition 0. हम ये मान के चलते हैं कि जब आपकी स्टार्टिंग का था तब आपने क्लॉक को अभी कुछ नहीं अप्लाई किया और सारे फ्लिप फ्लॉप आपके इनिशियल वैल्यू 0 पे पड़े हुए हैं। अब जब फर्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो फर्स्ट क्लॉक पल्स पे क्या होगा, सपोज करो कि आपने 1010 स्टोर करवाना है तो अब एलएसबी से स्टार्ट कीजिए। तो एलएसबी बिट क्या है, उसकी 0 है। अभी उसने लिखा फर्स्ट फंक्शन पे 0 0 0 0 सारे जीरोस पे हैं। नेक्स्ट पे क्या हुआ कि जब आपने 0 अप्लाई किया तो ये 0 यहाँ एंटर हो गया। ठीक है, जैसे ही फर्स्ट क्लॉक पल्स आएगी ये इसको आउटपुट दे देगा। क्लियर है? इट मीन्स फर्स्ट क्लॉक पल्स पे आपके फर्स्ट की आउटपुट क्या हो गई है, 0। ठीक है, और जैसे ही जब सेकंड क्लॉक पल्स आई तो जो इसकी आउटपुट है वो इसकी क्या बन जाएगी, इनपुट बन जाएगी। और यहाँ से नई इनपुट आपकी क्या हो जाएगी, एंटर हो जाएगी, जो कि आपकी क्या है, 1 है। ठीक है, अब थर्ड क्लॉक पल्स पे क्या होगा कि जो 0 यहाँ शिफ्ट हुआ था वो आपका नेक्स्ट पे चला जाएगा और जो इसका 1 था वो आपका इसकी इनपुट बन गया तो 1 यहाँ आ जाएगा और नेक्स्ट 0 क्या बन जाएगी, इसकी इनपुट बन जाएगी। और फोर्थ क्लॉक पल्स पे क्या होगा कि ये 0 जो होगा वो यहाँ चला जाएगा, इसका जो 1 होगा वो यहाँ, अगेन जो इसका 0 है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा और लास्ट में आपका डाटा क्या स्टोर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इट मीन्स हमने 4 क्लॉक पल्सेस के अकॉर्डिंगली आपका डाटा 1 बाय 1 इन फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या करवा दिया, शिफ्ट करवा दिया बाय द यूज ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स। I can repeat again. During the first clock pulse, the 0 will be stored into your D and you can getting the output. Here we can see that the D flip flop work on the function. जैसे आप D में पढ़ा हुआ है कि D को जब आप क्लॉक अप्लाई करते हैं जो इसकी इनपुट होगी वो इसकी क्या बनती है, आपकी आउटपुट बनती है। अगर D 0 है तो आउटपुट 0, D 1 है तो आउटपुट 1। तो पहली क्लॉक पल्स पे आपने इसको 0 इनपुट दी थी यहाँ से, तो वो 0 इसकी आउटपुट बन गई। सेकंड क्लॉक पल्स पे क्या हुआ कि जो इसकी आउटपुट है वो इसकी इनपुट बन जाएगी और सेकंड क्लॉक पल्स पे आपका सेकंड डाटा इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। इट मीन 0 यहाँ और 1 यहाँ, ये 2 बिट आपके परफॉर्म हो गए हैं। थर्ड क्लॉक बिट पे इसकी जो 0 है वो यहाँ चली जाएगी, इसका 1 यहाँ और इसकी 0 यहाँ पे दोबारा से आ जाएगी। फोर्थ क्लॉक पल्स पे ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 0 यहाँ और फर्स्ट डाटा 1 आपका यहाँ क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो आपने 4 क्लॉक पल्सेस के अंदर जो भी डाटा था बिट स्ट्रीम इन द फॉर्म ऑफ 4 बिट है, तो आपने उन डाटा को 1 बाय 1 करके क्या करवा लिया, एंटर करवा लिया। अब आप क्या करेंगे, अगर आप उन डाटा को एंटर करवा रहे हैं 1 बाय 1 और उसको सीरियली आउट करवाना है तो फिफ्थ क्लॉक पल्स पे फर्स्ट लास्ट ने क्या स्टोर किया है, 0, क्योंकि 1010 है, डाटा इस तरह से शिफ्ट हो रहा है। पहले 0 था, 0 था, ये 0 यहाँ चला गया, यहाँ 1 आ गया, फिर उसके बाद ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ और यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया। लास्ट में ये 1, ये 0, ये 1 और ये वाला क्या हो गया, 0 हो गया। जो फिफ्थ क्लॉक पल्स आएगी यहाँ से 0 आउट हो जाएगा और जो पीछे वाली बिट है वो आगे की तरफ क्या हो जाएंगी, आपकी ट्रांसफर हो जाएंगी और ये वाली बिट क्या हो जाएगी, आपकी 0। तो 1 बाय 1 करके आपकी ये बिट सीरियली आउट होती जाएंगी और पीछे वाले फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएंगे, 0 होते जाएंगे। तो इस तरह हम पांचवी क्लॉक पल्स पे 0 आउट होगा, छवीं पे 1, सातवीं पे 0, आठवीं पे 1 और नौवीं पे अगेन सारे फ्लिप फ्लॉप फिर इनिशियल कंडीशन 0 से क्या होंगे, आपके स्टोर हो जाएंगे। So that's why its name is serial in, serial out shift registers. So here we study about your parallel and serial out shift register. That is a most versatile register which you can use in your digital communication application. As per the exam point of view, the topic is very important for you. That is a parallel and serial out shift register. Here we show one figure for your parallel serial out shift register. Here we use a negative clock pulse. It means the data is stored or shift on the basis on when the clock changes from not 0 to 1, that is from 1 to 0। तो अगर यहाँ आप बबल हटा दोगे तो ये पॉजिटिव लॉजिक पे काम करेगा, अदरवाइज क्या होगा, ये नेगेटिव लॉजिक पे काम करेगा। मींस कि अगर ये नेगेटिव लॉजिक पे काम कर रहा है तो जो भी पर्टिकुलर टाइप बिट है वो तभी स्टोर होंगी या शिफ्ट होंगी जब आपकी क्लॉक क्या हो रही है, 1 से 0 पे चेंज हो रही है। क्लियर? ठीक है, तो हम इसने यहाँ पे एक बिट माना हुआ है, दैट इज शिफ्ट हाइफन लोड बार। तो मान के चलिए कि हमने एक फर्स्ट केस मान लिया कि मैंने लोड को 0 दिया, मतलब सपोज करो कि मैंने यहाँ 0 अप्लाई किया तो नीचे वाली लाइन क्या हो जाएगी, ये सारी 1 हो जाएगी
उस लाइन के वन जो जिसको जीरो दे रहे हो, नहीं आपने जीरो दिया, जीरो देने की वजह से ये जीरो यहाँ जब जाएगा तो नोट गेट के थ्रू ये सारा क्या हो जाएगा आपका वन में चेंज होएगा, ऊपर वाली लाइन वन हो जाएगी और नीचे वाली लाइन जीरो जीरो पे रहेगी क्योंकि उसके पास कोई भी नोट गेट नहीं है। तो जो ऊपर वाली लाइन जब वन हुई तो वन किस किस के ऊपर अप्लाई हो रहा है, टू पे, फोर पे, और आपका वन किस पे अप्लाई हो रहा है, सिक्स पे। तो आपके टू, फोर और सिक्स गेट क्या हो जाएंगे, अनेबल, और वन, थ्री और फाइव क्या हो जाएंगे आपके, डिसेबल। whenever you apply the zero at your node gate, इट मीन्स आप लोड दे रहे हो, लोड उस टाइम में लोड फंक्शन काम करेगा क्योंकि जीरो के ऊपर बार लगा हुआ है। तो जीरो के ऊपर बार लगा हुआ है, जीरो वन में चेंज हो जाएगा, तो उस टाइम में कौन सा फंक्शन परफॉर्म होगा, लोड। अब ध्यान से सुनिए कि जब आपने इसको जीरो दिया तो आपका टू, फोर और सिक्स क्या हो गए, अनेबल हो गए, ठीक है। और टू, फोर, सिक्स के अनेबल होने की वजह से ड्यूरिंग फर्स्ट क्लॉक पल्स क्या ऑपरेशन होगा आपका डन, आपकी जब ये बी जीरो जो बिट है वो आपकी इनपुट से एंटर हो जाएगी। अपने ही पढ़ा हुआ जो बिट एंटर होती है वही आपकी क्या बनती है, आउटपुट बनती है, क्लियर, ठीक है। तो अगर सपोज बी जीरो इसकी इनपुट से एंटर हुई, क्लियर, तो आप बी जीरो यहाँ जब एंटर होगी तो वो बी जीरो यहाँ आके क्या हो जाएगी, इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगी, मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन डी जीरो इजिकल टू क्या बन जाएगा आपका, बी जीरो बन जाएगा। अब उस केस में आपका क्या है, वन को आपने जीरो दिया हुआ है, क्लियर है, वन जीरो है तो इस फंक्शन को भी क्या बना देगा, जीरो बना देगा। तो यहाँ इसकी आउटपुट हमें क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। इट मीन वन जीरो इंटू क्यू जीरो जीरो, अगेन जीरो इंटू क्यू वन अगेन जीरो, और जीरो इंटू अगेन क्यू थ्री विल बी जीरो। लेकिन ये क्या आपका वन है, लेकिन जब वन इस बी वन से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ आउटपुट हमें क्या मिलेगी, बी वन, और यहाँ की क्या मिल रही है, जीरो, क्योंकि आप इस लॉजिक को जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस लॉजिक को वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जो लॉजिक आपका जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है वहां आउटपुट आपको जीरो मिलेगी, और जो लॉजिक आपका वन से मल्टीप्लाई हो रहा है वो कोरस्पोंडिंग बिट यहाँ पे आपको बी वन मिलेगी। तो लास्ट में क्या लगाया हुआ है आपने, और गेट, तो जीरो प्लस बी वन यहाँ क्या हो जाएगा आपका, बी वन। इट मीन्स डाटा आपका पैरेलली क्या हो रहा है, लोड हो रहा है इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, क्लियर। अगेन आपका इस बिट के जीरो होने की वजह से आपने लोड को जीरो दिया हुआ है तो ये वन हुआ, नीचे वाला जीरो है, ये जीरो गया, जीरो होने की वजह से ये क्या हो गया, फंक्शन पूरा जीरो हो गया। लेकिन बी टू इंटू वन यहाँ क्या मिलेगा, बी टू, तो जीरो प्लस बी टू यहाँ क्या मिला, बी टू। इट मीन जी टू इजिकल टू क्या आ गया आपका, बी टू। एंड सेम एज फॉर ईयर डी थ्री इजिकल टू आ गया, बी थ्री। इट मीन डाटा बिट जो है वो पर्टिकुलर बिट से क्या हो गई है, आपके अंदर जाके लोड हो गई है, क्लियर। अब आप इस फंक्शन को रिवर्स कीजिए। रिवर्स कैसे करेंगे, पहले आपने जीरो दिया था, अब यहाँ पे क्या देंगे, आप वन देंगे। जैसे ही आप वन अप्लाई करेंगे, वन अप्लाई करने की वजह से जो ऊपर वाली लाइन है वो सारी जीरो हो जाएगी और नीचे वाली लाइन क्या हो जाएगी, आपकी वन हो जाएगी। तो उस केस में बताओ कौन कौन से गेट एनेबल होंगे आपके उस टाइम में, आपके नीचे वाली लाइन क्या है, वन है, ऊपर वाली लाइन क्या है, वन के अप्लाई होने से जीरो हो गई, तो आपके वन, थ्री और फाइव क्या होंगे, अनेबल होंगे, और टू, फोर, सिक्स क्या होंगे आपके, डिसेबल होंगे। अब ध्यान से सुनिए, अगर टू डिसेबल है, ठीक है, तो इसने तो काम ही नहीं करना है, तो इसके आउटपुट पे क्या आएगा, जीरो। अगेन फोर के आउटपुट पे जीरो, अगेन सिक्स के आउटपुट पे जीरो, क्लियर है। लेकिन जब आपने जीरो दिया था तो ये पर्टिकुलर टाइप बिट अंदर क्या हो गए हैं, लोड हो गए हैं, क्लियर। अब देखो ध्यान से, अब अगर यहाँ वन गया तो जब आपकी क्लॉक पल्स आई थी तो क्लॉक पल्स आने की वजह से ये, जब आपने क्लॉक पल्स भी दिया और पर्टिकुलर बिट को आपने यहाँ जीरो अप्लाई किया तो ये बिट आपकी क्या हो गई है, अंदर स्टोर हो गई है। जैसे ही आपकी नेक्स्ट क्लॉक पल्स आई तो क्या हुआ, जो बी जीरो था, बी जीरो इजिकल टू क्या आ गया आपका, डी जीरो आया है, क्योंकि जब आपने लोड को जीरो दिया है तो बी जीरो यहाँ के आके आके क्या हो गया, स्टोर हो गया है, ठीक है जी। अब आपने भी पढ़ा हुआ है कि अगर आप डी जीरो को, जब क्लॉक आपकी नेगेटिव एज ट्रिगर है, ठीक है, क्लॉक चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव, उसने काम करना है, जैसे ही फ्लिप फ्लॉप काम करेगा इट मीन द डिपेंड्स अपॉन योर इनपुट, वही आपकी क्या बनती है, आउटपुट बनती है। तो अगर मान लो डी जीरो, अगर आपकी डी जीरो की हेल्प से बी जीरो इनपुट एंटर हो रही है तो बी जीरो क्या बन जाएगी, आपकी क्यू जीरो बन जाएगी। इट मीन क्यू जीरो इंटू वन, यहाँ पे क्या मिलेगा आपका, क्यू जीरो, क्लियर। अगेन क्यू वन इंटू वन, यहाँ क्या मिलेगा आपको, क्यू वन। अगेन क्यू टू इंटू वन, यहाँ क्या मिलेगा आपको, क्यू टू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, क्यू जीरो, यहाँ क्या मिला, क्यू वन, और यहाँ क्या मिला, क्यू टू। लेकिन उस टाइम आपके टू, फोर, सिक्स सारे क्या है, डिसेबल है। तो जब यहाँ पे आपको क्या मिला है, क्यू जीरो मिला है, तो जीरो प्लस, सॉरी, क्यू जीरो प्लस जीरो, यहाँ क्यू जीरो मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा।
Q0 plus 0 is equal to Q0 आ जाएगा. It means क्या हुआ, आपका डाटा क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे डाटा जो D0 है वो आपका D0 जो बिट था वो आपकी आउटपुट बन गई Q0. ठीक है जी. B0 जो है वो आपकी आउटपुट बन गई Q0. लेकिन वो Q0 कहाँ ट्रांसफर हो रही है, विद द हेल्प ऑफ दैट लॉजिक आपकी इस पे अप्लाई हो रही है D1 पे. क्लियर है, क्योंकि ये वाला गेट काम कर रहा है. इस वाले गेट के काम करने की वजह से क्या हुआ, Q0 इंटू 1 Q0 आया. अब Q0 प्लस 0 यहाँ पे क्या मिलेगा, Q0. इट मीन यहाँ से इसकी आउटपुट इसकी क्या बन जा रही है, इनपुट बन रही है. इट मीन Q0 कहाँ ट्रांसफर हो गया, आगे. तो आपका कौन सा ऑपरेशन हुआ, शिफ्ट. अगेन Q1 कहाँ हुआ, Q2 के पास. देन Q2 किसके पास होगा, Q3 के पास, विद द हेल्प ऑफ योर 1 3 एंड 5 गेट ड्यूरिंग द लॉजिक केस 1. सो इस तरह आप विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट रजिस्टर की हेल्प से आपने कौन सा ऑपरेशन डन किया, पैरेलल इन सीरियल आउट. डाटा पैरेलली ऐड हो रहा है और सीरियली क्या हो रहा है, आपका आउट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ योर शिफ्ट हाइफन लोड बार फंक्शन. क्लियर. नेक्स्ट है आपका सीरियल इन पैरेलल आउट. आप क्या करेंगे, आपने सिंपल कोई फ्लिप फ्लॉप लिया हुआ है, यहाँ पे मेंशन आपने सपोज डी ही लिया हुआ है. आपने यहाँ पे क्लॉक को क्या रखा हुआ है, पॉजिटिव एज रखा हुआ है. इट मीन क्लॉक जब आपकी 0 से 1 पे जाएगी तभी पर्टिकुलर बिट क्या होंगी इसके अंदर सीरियली वाइज एंटर होंगी. तो देखो आपने जब सीरियल इन सीरियल आउट किया था तो 4 क्लॉक पल्स लगे थे डाटा को एंटर होने में. क्लियर. लेकिन 5वीं क्लॉक पल्स पे क्या होगा, डाटा पैरेलली क्या हो जाएगा, साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगा, आपका आउट हो जाएगा. इट मीन्स क्या हुआ कि आपने कैसे बनाया सर्किट, आपने 4 फ्लिप फ्लॉप लिए. सपोज करो कि आपने वन सभी पे 1 1 1 स्टोर करवाना है, तो इनिशियली तो सारे 1 पे ही हैं. जब पहली क्लॉक पल्स आएगी तो आपने मान लो 4 बार 1 यानी कि 4 टाइम 1 यहाँ स्टोर करवाना है. तो जो पीछे से LSB भी 1 है, देन LSB से MSB भी आपके सारे क्या है, आपके 1 है. तो पहली क्लॉक पल्स पे आपका डाटा 1 क्या हो गया, इनपुट पे एंटर हो गया. लेकिन जब पहली क्लॉक पल्स ने काम किया तो क्या हुआ, जो डाटा इनपुट है उसकी आउटपुट बन रही है. क्लियर है. तो यहाँ पे भी क्या आएगा, आपका 1 आएगा. तो इट मीन इसकी आउटपुट भी उसने 1 स्टोर किया, ये जीरो और ये वाला 0. जब सेकंड क्लॉक पल्स आई, ये आउटपुट इसकी इनपुट बन गया. क्लियर है. और यहाँ से नई इनपुट क्या हो गई, आपकी एंटर हो गई है. तो ये वाला 1, ये वाला 1 और ये वाला 0 और ये वाला 0. थर्ड क्लॉक पल्स पे ये 1 यहाँ चला गया, ये 1 यहाँ चला गया और यहाँ से नया 1 क्या हो गया, आपका एंटर हो गया. फोर्थ क्लॉक पल्स पे ये 1 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 1 यहाँ और फोर्थ वाला 1 क्या होगा, यहाँ एंटर हो गया. इस तरह हमने 4 वंस क्या हो गए, विद द हेल्प ऑफ 4 क्लॉक पल्सेस क्या करवा लिए, इन करवा लिए. और जैसे ही 5वीं क्लॉक पल्स आएगी, आपकी फर्स्ट की आउटपुट सेकंड की इनपुट बन रही है, तो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे यहाँ से साइमल्टेनियसली. so that is the operation of your serial in parallel out shift register. Application of shift registers क्या है, it is used serial in parallel out shift registers to provide n bit data serially. And it requires n clock pulse and provide parallel output. It requires 0 clock pulse required. Second one, it is used to serial to parallel converter. Third one, serial in parallel out shift register to convert a trapezoidal code to a special code. Then last slow to fast converter, serial and parallel. Next, start with your parallel in serial out shift register. Which also cover in my previous video here. It is also a parallel in serial out shift registers. So आप दोनों में से कोई भी चीज करिए, फंक्शन उसका सेम ही आना है. इसमें मैंने वहाँ गेट्स लाने की बजाय एक फ्लिप फ्लॉप ऐड कर दिया, तो फंक्शन वैसे ही काम करेगा जैसे उस वाले लॉजिक में काम किया उसने. अगेन पैरेलल इन पैरेलल आउट मीन्स ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लॉक पल्स. ठीक है. पैरेलल इन रिक्वायर्स 1 क्लॉक पल्स एंड पैरेलल आउट रिक्वायर्स 0 क्लॉक पल्स. इट मीन्स जब आप फर्स्ट पहली क्लॉक पल्स दोगे तो सारा डाटा पैरेलल उसी के अंदर क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा. और नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे क्या होगा कि डाटा आप क्या होगा, आपका आउटपुट पे आ जाएगा. क्लियर. ठीक है. और क्लॉक हमने सभी को क्या की हुई है, साइमल्टेनियसली अप्लाई की हुई है. तो क्या हुआ कि पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर एज स्टोरेज रजिस्टर होता है, जो पैरेलली बिट को स्टोर करवाने के लिए यूज होता है. और ये ऑपरेशन की स्पीड को भी फास्ट करता है. वो कैसे फास्ट करता है, क्योंकि सारे बिट आपके साइमल्टेनियसली क्या हो रहे हैं, एंटर हो रहे हैं और साइमल्टेनियसली क्या हो रहे हैं, आपके एग्जिट हो रहे हैं. Clear. So for parallel in, it requires 1 clock pulse, and for parallel out, it requires 0 clock pulse, because in first clock pulse, your data will be entered into D3 and becomes a part of your output. So when the data is entered at D3, it is automatically output at Q3. Clear. And again,
the data enter at D2, it will automatically output at Q2. So these oral function perform either input or output simultaneously. So that operation becomes fast and very easy process for parallel and parallel out shift register. And your last one is called your bidirectional shift registers. So this topic is very much important for you, and here we also add a circuit for AND OR. What is the difference between in your that or that particular type of circuit? Here same logic we can use, but in that case one extra logic will be mount here. Clear? And the second difference is आपने पीछे वाला जब पैरेलल सीरियल आउट किया है तो इसी तरह का सर्किट बनाया था, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सर्किट और ऐड हो गया फर्स्ट पे। क्लियर? और सेकंड थिंग क्या है, इसके अंदर देखो ध्यान से, जो फर्स्ट लास्ट की जो आउटपुट है वो आपकी नेक्स्ट से जुड़ रही है। अब यहाँ से भी जो लास्ट की आउटपुट है वो आपके नेक्स्ट से जुड़ रही है। ठीक है जी, क्लियर है कि नहीं है? बस ये चेंजेस आए हैं। कैसे किया चेंज उसने? यहाँ से देखो वही सेम है, शिफ्ट एंड लोड, उसने यहाँ पे एक मोड कंट्रोल एम इनपुट शो कर दी, 0 और 1 लॉजिक जाएगा, और 1 के ऊपर आपके जैसे 1 गया, 0 दिया तो 1 गया, 1 से आपके 2 4 6 और 8 कनेक्टेड है, और ऊपर वाले 0 से आपके 1 3 5 और 7 कनेक्टेड है। तो इसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। हमने इस तरह से फ्लिप फ्लॉप को लगाया हुआ है, दैट इज D0 D1 D2 एंड D3, एंड इट्स आउटपुट इज Q0 Q1 Q2 एंड Q3। यहाँ पे मैंने क्लियर इनपुट भी शो की हुई है। ठीक है? और आपने जो क्लॉक है वो कौन सी यूज कर रहे हो? नेगेटिव एज ट्रिगर। तो आप पॉजिटिव एज भी यूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। बस ध्यान में ये रखना है कि जब पॉजिटिव एज काम कर रही है तो आउटपुट तभी चेंज होगी व्हेन एवर द क्लॉक चेंजेस फ्रॉम योर 0 to 1, और 1 to 0 के केस में आपके नेगेटिव एज ट्रिगर है तो आउटपुट तभी चेंज होगी व्हेन द क्लॉक चेंजेस फ्रॉम योर 1 to 0। आप ध्यान से देखना इसकी वर्किंग को, इसके अंदर क्या हो रहा है। आपने दोनों काम करवाने हैं बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर्स। ठीक है, इट मींस इधर लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए कैसे काम करेगा। जैसे सपोज करो कि आपने 0 दिया यहाँ। क्लियर? ये वाली बिट जो है वो डाटा लेफ्ट है और इधर क्या है, आपकी डाटा राइट है। यहाँ से ध्यान से देखो, आपकी जो सेकंड गेट है, सेकंड गेट जो है वो आपकी सेकंड गेट का एक टर्मिनल सेकंड की आउटपुट से जुड़ रहा है, ऐसे 5 का Q2 से और 3 का Q3 से। ऊपर से जो इसकी आउटपुट आ रही है वो सेकंड वाले की इनपुट बन रही है 6 की। अब जो इसकी आउटपुट आएगी Q2, वो क्या बनेगी आपकी? यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से जो सेकेंड आउटपुट है उसकी इनपुट बन रही है, लेकिन क्या चेंजेस के अंदर हैं, जो 2 4 6 और 8 है। 8 पे तो अपने डाटा लेफ्ट अप्लाई कर दिया, 6 क्या बन रहा है, 6 आपका फर्स्ट के Q0 से कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरह 4 आपका किससे कनेक्टेड होगा? Q1 से। क्लियर? ठीक है, इस तरह आपका 2 जो होगा वो आपका Q2 से। ठीक है, उसके बाद जो आपका Q3 होगा वो आपका नेक्स्ट है, एंड सो ऑन। सो दैट इज अ मेजर सर्किट फॉर योर बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर्स। तो इसके अंदर यहाँ जो बिट है दैट इज अ डाटा राइट और दैट इज अ डाटा लेफ्ट। तो हम वन बाय वन इसका फंक्शन करते हैं, कैसे इसने काम किया। क्लियर क्या देता है कि जैसे सपोज करो एक बार अपनी फंक्शन काम करवा लिया, तो फ्लिप फ्लॉप सारे क्या है, मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट है। फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म होने के बाद सारी बिट को आपको 0 पे लेके आना होता है। तो क्लियर को क्या दे दोगे? 0 दोगे तो अंदर जाके क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। जैसे ही लॉजिक 1 में चेंज होगा ये सारे फ्लिप फ्लॉप किस पे आ जाएंगे? फ्रॉम द इनिशियल स्टेज स्टार्टिंग फ्रॉम योर 0 0 0 0। अब देखिए ध्यान से, आपने मोड को 0 अप्लाई किया, जैसे ही 0 अप्लाई किया ऊपर वाली सारी लाइन 0 हो गई, और ऊपर वाली लाइन से आपके कौन से गेट कनेक्टेड है? ध्यान से देखो, 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5 एंड 7। तो ये तीनों गेट क्या होंगे? आपके डिसेबल होंगे। उसके डिसेबल होने की वजह से आपका क्या होगा? ऊपर वाले गेट डिसेबल हो गए हैं। इट मीन्स कौन कौन से डिसेबल हुए हैं? 1 3 5 एंड 7। ठीक है, तो इट मीन्स उस टाइम में आपका अगर ये 0 है तो इसके साथ वाला फंक्शन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इट मीन्स डी आर 0 होगा तो उस टाइम में कोई भी राइट ऑपरेशन डन नहीं होगा। लेकिन लेफ्ट जो है वो 0 नहीं हुआ क्योंकि वो नीचे वाले से कनेक्टेड है। नीचे वाला आपका 1 है, तो 1 होने की वजह से क्या हुआ? आपका कौन सा ऑपरेशन होगा? डी एल स्टैंड फॉर डाटा लेफ्ट। अब वो होगा कैसे, वो ध्यान से देखो। लेकिन अब ध्यान से सुनना, जब आपने 0 दिया
जीरो देने की वजह से नीचे वाला 1 हो गया। उस टाइम में आपका 2, 4, 6 एंड 8 यानी कि जो इवन नंबर है वो अनेबल्ड है, और 1, 3, 5, 7 जो ओड नंबर है वो आपके क्या है, डिसेबल है। तो जो अनेबल है उसका फंक्शन देखिए, जो अनेबल है उसकी अनेबल होने की वजह से 1 टू डीएल, यहाँ क्या मिलेगा, डीएल, ये तो 0 हो गया। अगेन क्या हुआ, यहाँ से आपका क्या आ रहा है, ये वाला ध्यान से देखो Q0 आ रहा है, इट मीन Q0 इंटू 1, यहाँ क्या मिलेगा आपको, Q0। अगेन यहाँ क्या मिलेगा, ध्यान से सुनिए, दैट इज Q0 के बाद ये वाला क्या मिलेगा, Q1। ठीक है, अब यहाँ क्या मिलेगा आपका, अगेन इसके आउटपुट पे Q2। ठीक है, तो आपने जब दूसरा वाला फंक्शन तो 0 ही है, तो 0 प्लस डीएल, यहाँ क्या मिला, डीएल, 0 प्लस Q0, यहाँ क्या मिला, Q0, और 0 प्लस Q1 यहाँ क्या मिला, Q1, एंड 0 प्लस Q2 यहाँ क्या मिला आपको, Q2 मिला। क्लियर, तो क्या हुआ कि डाटा जो है वो आपका लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। क्लियर, तो ये डाटा लेफ्ट यहाँ हो गया, D0 यहाँ हो गया। ठीक है, D0 क्या बन गया, DL, D0 के पास गया, उसने आउटपुट दी। ठीक है, आउटपुट देने की वजह से वो इससे कनेक्टेड है, Q0। ठीक है जी, अब वो डाटा Q0 जो है वो राइट से कहाँ जा रहा है, आपका लेफ्ट की तरफ जा रहा है। अगेन यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ। क्लियर, तो ये कौन सा ऑपरेशन डन हो रहा है आपका, लेफ्ट। क्लियर, ऐसे ही सेम जब आप 1 अप्लाई करोगे तो 1 देने की वजह से आपका 1, 3, 5 और 7 क्या होंगे, अनेबल होंगे। 2, 4, 6, 8 क्या होंगे आपके, डिसेबल होंगे। उस टाइम में आपका डी आर काम करेगा और ये वाला काम नहीं करेगा। इट मीन 0 प्लस डी आर, यहाँ क्या मिलेगा आपको, डी आर। इट मीन डाटा क्या होगा आपका, राइट की तरफ शिफ्ट होगा, इस तरफ। क्लियर, राइट की तरफ। वो कैसे होगा, वो ध्यान से देखो। अब आपका 3 काम कर रहा है, अगर 3 काम कर रहा है तो Q3 इंटू 1, Q3 मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ आउटपुट D2 के पास क्या आई है, Q3 आई है। क्लियर, इट मीन्स जो इसकी आउटपुट है वो यहाँ जा रही है। क्लियर, ऐसे Q2 कहाँ जा रहा है, आपका D1 के पास जा रहा है। तो डाटा आपका राइट की तरफ क्या होता जा रहा है, शिफ्ट होता जा रहा है। So that is a most versatile register used in your digital application। और एज पर दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन हमेशा आता है, तो उसे प्लीज अच्छे से घर जाके स्टडी कीजिए। अगर उसमें फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। So I review my lecture with the help of your shift registers. We are basically study the 4 type of shift registers: serial in, serial out, serial in, parallel out, पैरेलल इन, सीरियल आउट और पैरेलल इन, पैरेलल आउट। तो मैंने इसको बड़े प्यार से आपको समझाया है कि कैसे आपका डाटा सीरियल इन, सीरियल आउट की तरफ क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। एंड इट्स एप्लीकेशन, कई बार एप्लीकेशन के ऊपर भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। तो आपने इसकी वर्किंग पढ़ी, हाउ द पैरेलल इन, सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर शुड बी डन, एंड हाउ द सीरियल इन, पैरेलल आउट एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर इज आल्सो मेंशन। And last one is called your bidirectional shift register, which is very much important for you as per the also as per the exam point of view। तो अगर घर जाके इसको दोबारा फिर पढ़ना, अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप मेरे से आके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग माय वीडियो।